आया होमवर्क आया? Did you get the homework, sir? Yeah. बोलो. In homework sum also it was case 3 of goodwill. आया? Check कर लो. Loss on revaluation is 10,800. Breakup is 6480 and 4320. बराबर है? Bank balance at the end is 60750. मिला? Goodwill was 67,500. Breakup is 40,500 and 27,000. Proportionate capital नहीं था तो balance में आपका वासु विराजन हरी it will be 160020, 106680 and 60,000. Total is 3,26,700 and balance sheet tallies on 371,700. Hello? Doubt in the homework? Which case of goodwill did you understand? Third case. Clear cut valued था तो एक ही entry था. Goodwill to old partners old relation. Now today we are going to do goodwill with the balance sheet. Okay, goodwill in the balance sheet. हाँ. उसमें पहला सम ले लो आप लोग सम नंबर 27. हाँ भाई. No journal. See sum number 27. King, Queen and Prince. What is seventh sum? आज का सम सब स्टार मार्क करना. फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी फाइंडिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट. पहली बार आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा. स्टार मार्क करके रखना. आज का कंसेप्ट ध्यान से समझना अच्छे से. थर्टियथ सितंबर का दिया है तो 1 अक्टूबर का होगा आपका बैलेंस शीट. Sum number 27. तो गुडविल नोट बना. बताता हूँ देखो मेन गुडविल ही है वो सब. Main thing is goodwill only. Let's start. Tell me the first step. देखो king and queen are partners sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4. What is 3/4 and 1/4? 3:2. बराबर है? So sorry. 3:1 is your old ratio. बराबर है? Start with the first step. Balances. Cash balance is 1200. So 2 balance free. 1200. Go to capitals. What are the capitals of king and queen? 90 and 40,000. मिला. 90 for king and 40 for queen. That's your first step.
opening balance. Move to step 2. What is that? Reserves वगैरह कुछ दिया है? क्या करोगे? 10,000 distributed to king and queen by general reserve. What ratio? 3:1 OR, which is I think 7,500 and 2,500. बराबर है? Step 2 is reserves or losses. You don't have any losses on the asset side. You just have reserves. अच्छा, एक और चीज में बैलेंस आएगा. यहाँ पे गुडविल में भी दिया हुआ है. तो टू बैलेंस BD, बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है. Can you see that? In the balance sheet already there is goodwill. Normally we write only two items का balance, cash and capital. But here we will write three items का balance. Because you are having goodwill account in the balance sheet. दिख रहा है आपको ऊपर क्वेश्चन में? मिला? 48,000. So पहली बार गुडविल में भी ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है. And goodwill will have its balance debit or credit? Debit by asset. तो ओपनिंग बैलेंस वाले स्टेप में तीन बैलेंस है, कैश, गुडविल एंड कैपिटल. देन सेकंड स्टेप वाज रिजर्व्स. व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? कैपिटल. व्हाट इज द कैपिटल? प्रिंस इज टू पे 30,000 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. 1/5 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. एंड कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैश टू प्रिंस कैपिटल 30,000. कैश में टू प्रिंस कैपिटल और प्रिंस कैपिटल में बाय कैश 30,000. बराबर है? इज दैट क्लियर? फोर्थ स्टेप इज गुडविल. पहले तो रीड करो और डिटरमाइन करो विच केस इट इज. व्हाट इज द केस ऑफ गुडविल? Read and tell me which case of case. Third case, absolutely right. Third case. Can it be case 1? Brought his share of goodwill. ऐसा कुछ दिया? Brought his goodwill, brought goodwill. ऐसा कुछ nothing. So case 1 is out of the question. Case 2 नहीं हो सकता, withdrawn नहीं है. 3 और 4 में से एक हो सकता है. तो क्या है? Third ही है क्योंकि opened in the books. Goodwill account opened, goodwill raised, goodwill valued. It is all case 3, right? 4 नहीं हो सकता क्योंकि राइट ऑफ नहीं है. एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं. ठीक है? लाया नहीं है कैश में, ब्रॉट नहीं दिया, विड्रॉन नहीं दिया, राइट ऑफ नहीं दिया, तो ऑब्वियसली इट इज केस 3, वैल्यूड इन द बुक्स एट 60. अभी अगर यहाँ पे गुडविल ना होता, 48 ना होता, तो मैं क्या करता पता है? सीधा 60 से रेस कर लेता, जो आपने होमवर्क में किया, जो हमने कल वाले सम में किया. एक ही एंट्री आप पास कर लेते. दैट वाज व्हाट? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. Goodwill to old partners, old ratio. That is the only entry would have passed. Is that right? But because you are having goodwill in the balance sheet already, इसका मीनिंग समझो क्या है ये. ये देखो गुडविल बैलेंस शीट में कब दिखता था? इससे पहले कि कोई और पार्टनर एडमिट हुआ होगा और गुडविल रेस किया होगा. केस 3 में ही दिखता था. बैलेंस शीट में कब दिखाते गुडविल? केस 3 में. तो अभी ऑलरेडी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गुडविल है, मतलब पहले केस 3 हो चुका है कुछ. तो का कैसे हुआ होगा? सपोज किंग जो है अकेला बिजनेस कर रहा होगा और क्वीन को ज्वाइन करना होगा. तो किंग ने क्वीन से गुडविल डिमांड की होगी. क्वीन ने कैश में नहीं लाया होगा, इसलिए किंग ने गुडविल रेज किया होगा. ये पास्ट में चल रहा है किंग और क्वीन का कहानी. तो किंग और क्वीन जब पार्टनर बने होंगे तब किंग ने गुडविल रेस की होगी. तो कहना है किंग और क्वीन जब पार्टनर बने होंगे तो इसमें ओल्ड पार्टनर खाली किंग होगा और न्यू पार्टनर ये दोनों होंगे, किंग और क्वीन. जैसे किंग क्वीन ओल्ड है तो किंग क्वीन प्रिंस न्यू है. वैसे किंग अगर ओल्ड होता, अकेला पार्टनर, अकेला सोल प्रोप्राइटर, और उसको क्वीन को पार्टनरशिप में आना होता तो तभी भी गुडविल मंगवाता. और क्वीन ने लाया नहीं था सपोज कैश में, तो किंग ने गुडविल रेस किया होगा. तो रेस करने की क्या एंट्री होती है? गुडविल टू ओल्ड. तो गुडविल टू किंग कितना मारा होगा?
48,000 और इसको राइट ऑफ कौन करने वाला था? किंग और क्वीन, न्यू टू गुडविल। तो किंग और क्वीन में न्यू कौन था? किंग क्वीन दोनों। क्वीन के आने के बाद हुए थे न्यू पार्टनर्स किंग एंड क्वीन। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री थी किंग क्वीन टू गुडविल 48,000 in which ratio? New ratio. What is the new ratio between king and queen? 3:1. How? वो क्या है, हमारे लिए ओल्ड है, मतलब उनका न्यू था। अग्री? तो ये तो करना ही था ये, क्योंकि किंग ने रेस करके छोड़ दिया था, बैलेंस शीट में दिख रहा था। तो फ्यूचर में किंग और क्वीन को इसको साफ करना था। क्या ये राइट ऑफ हो चुका है? नहीं हुआ है। कैसे पता चला? बैलेंस शीट। तो मतलब ये अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर ये राइट ऑफ होता तो किंग और क्वीन करते, इन द न्यू रेशियो करते। व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन 3:1? सो 36 and 12 बराबर है। अच्छा, ये अगर राइट ऑफ कर दिया हमने तो ये साफ हो गया गुडविल, फिर 0 हो जाएगा। फिर वापस रेस करेंगे हम लोग कितने से? अभी 60,000 से, क्योंकि अभी प्रिंस के आने के बाद टोटल गुडविल कितना रखा गया है? 60,000। और अभी कौन रेस करेगा? किंग एंड क्वीन, बिकॉज 60,000 के लिए हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? किंग एंड क्वीन। तो वो रेस करने की एंट्री क्या है? गुडविल टू ओल्ड, गुडविल टू किंग टू क्वीन, बराबर है। गुडविल टू ओल्ड, जैसे यहाँ पे गुडविल टू किंग था, ओल्ड गुडविल रेस किया, फिर राइट ऑफ किया, पुराना वाला साफ हो गया। अभी प्रिंस आ रहा है तो वापस रेस कर रहा है, तो गुडविल टू किंग एंड क्वीन, दैट विल बी 60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1. Why 3:1? Old ratio. Now the old ratio is 3:1. So basically हमें क्या करना है? हमें ये दो चीज करना है। ये तो हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी डन। किंग ने गुडविल रेस करके छोड़ दी थी जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। तो हमें दो चीजें करनी है। पुरानी 48,000 की गुडविल साफ करनी है, जो कौन करेगा? किंग क्वीन। और नई 60 की रेस करनी है, वो भी कौन करेगा? किंग क्वीन। और रेशियो भी सेम ही है, क्योंकि ये साफ कौन से रेशियो में हो रहा है? एनआर, उनका एनआर मतलब 3:1। और ये रेस कौन से रेशियो में हो रहा है? ओआर, हमारा ओआर विच इज 3:1। तो ये दो एंट्री करने के बदले बोर्ड्स क्या बोलते हैं? आप क्लब करो, एक ही एंट्री मार, इसका नेट एंट्री मार। तो नेट एंट्री क्या हो रहा है? देखो, ये गुडविल 48 है, इधर गुडविल 60 है, तो इधर गुडविल आया 12, 9 और 2. ये 36 है, ये 45 है, इधर 9, और ये 12 है, इधर 15 है, इधर 3। बात तो वही हुआ ना। इधर किंग क्वीन टू गुडविल है, इधर गुडविल टू किंग टू क्वीन है, दो ही पार्टनर है, वही रेशियो है, वही टोटल गुडविल है। तो काय को दो एंट्री करने का? इंस्टेड ऑफ reducing it by 48 and increasing it by 60, instead of reducing it by 48 and increasing it by 60, what are we doing? Just increasing it by 12, because this 48 already belongs to king and queen, उनको ही राइट ऑफ करना है। तो सीधा 12,000 ही रेस करो सिर्फ। तो ऑल इन ऑल, ये आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये सब में करने की जरूरत नहीं है। ऑल इन ऑल आपको ध्यान क्या देना है? क्या कोई गुडविल है क्या बैलेंस शीट में? इफ द आंसर इज यस, देन यू डोंट रेज फुल अमाउंट, यू जस्ट रेज द डिफरेंस, यू जस्ट रेज द डिफरेंस। तो 48 ऑलरेडी था, अपने को कितना चाहिए? 60। तो यू विल नॉट रेज इट बाय 60, नहीं तो 1,08,000 हो जाएगा। यू विल रेज इट सिंपली बाय 12, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना आएगा? 60, और बैलेंस शीट में आ जाएगा 60। एक्चुअली यही हो रहा है, पुराना 48 साफ हो रहा है। क्यों साफ हुआ समझा? पुराना 48 किसने रेस किया था? किंग ने। उसको कौन साफ किया? किंग। फिर वो 0 हो गया, पुराना भूल जाओ। फिर नया 60 कौन रेस किया? किंग। अभी वो पड़ा हुआ है, वो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि वो केस 3 है।
So instead of reducing it by 48 and increasing it by 60, what are we doing? Net सीधा 12,000 से रेस कर, समझा? ये ध्यान रख। बोल। फिर उसका नया वाले का वो आएगा तभी। Who will write off this 60,000 now? King, queen and prince. In which ratio? NR. वो तो फ्यूचर में जब होगा, अभी तो करने की जरूरत। Sorted है? Is this clear? तो in short, कभी भी अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया हो तो टोटल गुडविल रेज मत कर देना, डिफरेंस रेज कर। मतलब यहाँ पे समझो बैलेंस शीट में 48 की जगह 40 होता तो आप 20 से रेज करते। बैलेंस शीट में 10,000 होती तो आप 50,000 से रेज करते। बैलेंस शीट में 5,000 होती तो आप 55,000 से रेज करते। बैलेंस शीट में 55,000 होती तो 5,000 से रेज करते। बैलेंस शीट में 60,000 होती, नो इफेक्ट, रेज ही नहीं करते, नो एंट्री फॉर दैट। बैलेंस शीट वाली वैसे की वैसी नई बैलेंस शीट में दिख जाएगी 60,000, मतलब नई गुडविल पुरानी गुडविल दोनों सेम थी। यहाँ पे अलग इसके लिए क्योंकि ओवर द टाइम बिजनेस के प्रॉफिट्स बड़े होंगे तो गुडविल भी बढ़ी है। इज दिस क्लियर? यही कंसेप्ट था। तो यहाँ पर 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, 48 अगर दिया हुआ है आपको कितना बनाना है? 60 बनाना है। डोंट रेज इट बाय 60, रेज इट बाय हाउ मच? 12। एंट्री वही है, थर्ड केस ही है। व्हाट इज द एंट्री? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो। व्हाट आर द ओल्ड? किंग एंड क्वीन। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1। मतलब कितना आएगा? 12,000 को डिवाइड करो 3:1। नहीं 12,000 तो 3:1 में करो तो 9 and 3 आएगा ना। यही देखो यहाँ पे था हमारा एंट्री, दिख रहा है? ये नेट एंट्री क्या है? गुडविल टू किंग टू क्वीन। ये मैंने काट कूट करके नेट इफेक्ट यही है 12, 9, 3। कैंसिल करके नेट इफेक्ट यही आ रहा है 12, 9, 3। समझा? अभी कंसेप्ट क्या था? पहले गुडविल किसने रेज किया होगा? उसको किसको राइट ऑफ करना था? किंग और क्वीन को। कौन से रेशियो में करना था? 3:1। उनका न्यू, हमारा ओल्ड 3:1। चलो वो कर दिया। फिर नया गुडविल कौन रेज करेगा? अभी वाला किंग क्वीन, क्योंकि अभी किंग और क्वीन ओल्ड है। कौन से रेशियो में करेंगे? 3:1 में करेंगे। कितना करेंगे? 60 करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ reducing it by 48 and increasing it by 60, what are we doing? Increase it by 12। बात तो वही हुआ, समझा? ये दो एंट्रीज, ये सब खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आपको खाली नेट रेज करना, काम खत्म हो गया। गुडविल में 2 ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल कितना आएगा? 9 and 3। बाकी ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका, हो गया गुडविल। दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ द सम। नाउ लेट्स गो टू रिवैल। प्रिंस कैपिटल हो गया, गुडविल। इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 18,000, स्टॉक एट 50। इन्वेस्टमेंट था 16 का 18 हो गया तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 2,000। एंड इन्वेस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट इस 16 था प्लस रीवैल्यू 2,000, ये हो गया 18,000। ओके, स्टॉक एट 50,000, 44 का 50 हो गया। सर आरडीडी एक साथ नहीं सकते? अरे अलग, बट दीवाल। एक मिनट, आरडीडी में मैं आता हूँ। स्टॉक 44 प्लस रिवैल 50। क्या दिया आरडीडी का? देखो, प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेटर्स एंड बिल्स रिसीव, दोनों पे बनाने का है। जनरली बीआर पे हम लोग नहीं बनाते क्योंकि बीआर पहले डिसऑनर होकर डेटर में जाता है और फिर डेटर से पैसा आता है। पर कोई बिजनेस है दोनों पे अलग अलग ही बना डालेगा। डेटर पे वो अलग, मतलब डेटर पे नहीं बनाएगा, बीआर पे अलग, डेटर पे अलग, ऐसा। तो डेटर पे भी बनाना है, बीआर पे भी बनाना है, दोनों पे बनाना है। नहीं, रिजर्व फॉर बिल्स रिसीव। नाउ ये देखो क्या है, या प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकते हो।
डेटर कितने 32,000, उसका आरडीडी अलग 5%। तो 2 आरडी, ये तो आप करते हो कितना 1600 आएगा ना। तो दिस विल बी डेटर्स 32,000 माइनस आरडीडी 5% 1600, 30,400। एंड बीआर में भी बनाना है, बीआर 18,000 था, 18,000 इसमें रिजर्व फॉर बीआर या फिर प्रोविजन फॉर बीआर, दिस इज 900। बीआर था 18,000 माइनस रिजर्व फॉर बीआर या प्रोविजन फॉर बीआर 1000। Capital of all the provision of 1,000 claim for compensation to the worker. अभी ऊपर को WCF जैसा है नहीं, तो ये क्या है, कॉम्पेंसेशन टू वर्कर क्या है, एसेट है कि लाइफ। कोई इंजर्ड हो गया और सडनली आपको पैसा देना पड़ गया, तो सीधा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो गेन और लॉस। तो टू आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन, कैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी थी याद है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे आउटस्टैंडिंग compensation to worker लिखो या simply outstanding compensation, that is 1,000. Second effect, live, outstanding compensation to worker, outstanding compensation live. Okay, मेन चीज गुडविल था। गुडविल क्या है दिमाग में, अगर गुडविल बैलेंस शीट में ना होता तो आप कितने से रेस करते, 60। ऑलरेडी 48 था तो आपने 12 से किया, 45 होता तो 15 से कर। सर एक सबमिट दिया हो कि जो बैलेंस है उसको राइट ऑफ करने के बाद नहीं देगा, नहीं, वो सीएम है यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो बैलेंस दिया उसको पहले राइट ऑफ करो फिर नया रेस करो, वो यहाँ पे नहीं है पुराना। हाँ, ये एंट्री अलग अलग बोल रहा है, अलग पास करने को बोला सीएम है, रियल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक्चुअली आउटडेटेड है। गुडविल रेस करने वाला कंसेप्ट अभी निकल चुका है, मैंने आपको बोला भी था। ये चारों एंट्रीज अभी नहीं है, सीएम में 5वां ही केस है, नेट इफेक्ट, सीधा वो पार्टनर के कैपिटल से लेके नए पार्टनर को दिया जाता है शेयर। ये रेस जो हम लोग करते हैं ना, रेस, ये देखो किंग ने रेस किया, क्वीन ने रेस किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। ये कंसेप्ट ही नहीं है, आप खुद की गुडविल ऐसे हवा में जनरेट कर ही नहीं सकते। आपने अगर किसी की गुडविल खरीदी है तो ही आप वो बुक्स में दिखा सकते हैं, कैपिटल में से डायरेक्टली निकाल के लोग ले लेंगे, वो सीए में कर, वो प्रैक्टिकल। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड आउटडेटेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल